Hello friends, in today's video we are going to discuss a conditional join question. So what are conditional joins? In join generally people do like on condition, and you will write like column from first table equal to or not equal to column from second table, and then some and end condition like that. But sometime we have some conditional conditions in the join that we need to um, apply. Okay, so here we will understand that what are the conditional join conditions. So so the question is, let's say we have two tables, customer license detail and license revenue, something like these two tables. You can see the data, and what we have to find out in the output query, what is the need we have to find out. Okay, on a particular, for a particular customer on a given expiry date of license, if the status of that customer is uh, at risk, or I mean risk or no risk. Okay, so question link looks very simple, that we have to join the two table based on customer ID and on the expiry date, and then we will fetch the status. But you see, the catch here is that in the second table you can see some null values on the expiry date side, right? So let's start writing query for this with some simple join first. So I will just, and how we want output is something like this: customer ID, customer name, expiry date, and then the status. Okay, so this is our first table. I will give one, this one first table as an A, and then join this table with license table, license revenue table B. And as we know that, okay, the the two tables are related based on customer ID, and then and A dot expiry date is equal to B dot expiry date, and what we want is B dot status is risk. We want only customer where having the status as a risk. Let's run the three queries together and then we see the output. You see here, we can see, so like so furthermore in this question what we have to clarify. So if we find that for a particular customer, like customer ID 1, if expiry date is null but the status is risk, right, then this customer will be considered as a, at risk on, I mean on each expiry date. When it is null, expiry date is null but the status is risk, then this customer will be considered as at risk on each date. Okay, yeah, so what I'm saying, it means like, okay, for customer ID 1 you can see here for license and expiry date 630, although it's like here no risk for 630, but because we have a null for customer ID as an expiry date and for the status risk. ओके तो फिर इसमें क्या कंसीडर करेंगे, बिकॉज अब हमें इसकी एक्सपायरी डेट नहीं पता बट ये रिस्क में था, सो देन दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ रिस्क फॉर इस डेट के लिए भी, because this is like, okay, given in the question that, okay, अगर expiry date null है, so we don't know if this expiry date applies for this one or not, तो फिर हम उसको मान के चलेंगे कि इसको भी कंसीडर करना है एज ए रिस्क. ओके, सो अभी क्या हो रहा है कि आप देखोगे इस जो आपका जो हमने क्वेरी लिखी, राइट, दिस वन, दिस इज रॉन्ग क्वेरी. व्हाई रॉन्ग क्वेरी? बिकॉज इसने कस्टमर 1 के लिए कोई भी रिस्क रो नहीं रिटर्न करी है, राइट. इट रिटर्न रिस्क ओनली फॉर कस्टमर 2, क्योंकि कस्टमर 2 के साथ में यस देयर वाज अ रिस्क ऑन दिस डेट, एंड देन कस्टमर 3 देयर वाज अ रिस्क ऑन दिस डेट. सो इसने सिर्फ 2 और 3 रिटर्न करी है, बट कस्टमर 1 के लिए कोई रिस्क डेट रिटर्न नहीं करी. सो दिस इज रॉन्ग क्वेरी, राइट. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी अप्लाई दिस लॉजिक ऑन एक्सपायरी डेट तो ये रिस्क देगा, और अगर हम बिना एक्सपायरी डेट के करेंगे तो देन दिस क्वेरी इज रॉन्ग. वी हैव टू कंसीडर एक्सपायरी डेट, लेकिन हमें करना क्या है कि जब एक्सपायरी डेट नल हो, सो वी हैव टू राइट वन मोर केस कंडीशन. ओके, एंड दैट कंडीशन विल कम एज एन और कंडीशन. इसी को मैं बोल रहा था, व्हाट वी विल राइट हियर. सो दिस होल कंडीशन विल बिकम वन कंडीशन लाइक दिस. इसको हम एक कंडीशन बताते हैं, उसमें हम ये बोलते हैं कि a डॉट एक्सपायरी डेट विल बी इक्वल टू b डॉट एक्सपायरी डेट, और इसे केस व्हेन b डॉट एक्सपायरी डेट, क्योंकि जो b टेबल है उसमें एक्सपायरी डेट हमें नल मिलते हैं. सो वी आर सेइंग केस व्हेन b डॉट एक्सपायरी डेट इज नल,
देन 1, तो हम इसको हमेशा ट्रू मानेंगे इस कंडीशन को, एंड ट्रू करने के लिए इसको 1 = 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा क्या देगी, अभी जब ये टेबल रन करोगे आप इधर पे, तो फॉर कस्टमर 1 इट विल मैच फॉर दिस वन, बट जब ये दूसरे लाइन में आएगी तो इसको यहाँ पे एक्सपायरी डेट नल मिलेगी। तो वैसे आप देखते तो ये वाली जब क्वेरी को आप इससे मैच करते कस्टमर ID 1 विद दिस वन, राइट, बट यहाँ पे डेट नहीं थी तो ये मैच नहीं हो रहा था, इसी वजह से ये नल छूट जा रहा था। तो अभी हमने इसमें ये लिखा कि अगर हमें कोई भी एक्सपायरी डेट नल मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर ये कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली, ये हमेशा ट्रू मानी जाएगी, यानी कि ये कस्टमर हमेशा रिस्क में कंसीडर होगा, बिकॉज वी डोंट नो कि ये एक्सपायरी डेट एक्चुअली कौन सी एक्सपायरी डेट है, ठीक है। सो नाउ रन दिस क्वेरी एंड यू सी नाउ वी आर सीइंग नल फॉर कस्टमर ID 1। यहाँ पे हमें चाहिए क्या क्या है, पहले इतनी कॉलम लेते हैं, एक्सपायरी कस्टमर ID चाहिए है A डॉट कस्टमर नेम एंड A डॉट एक्सपायरी डेट एंड B डॉट स्टेटस हमारा सारा रिस्क आएगा। नाउ यू रन दिस क्वेरीज टुगेदर। अभी आप देखो रन करोगे तो हमें क्या मिल रहा है कि हमें 2 रोज मिल रही हैं कस्टमर A के लिए, दोनों रिस्क में है, जबकि इसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से 130 को जो था और ये पे 130 को था, ये दोनों का जब मैच हो रहा था, एग्जैक्ट मैच, तो ये नो रिस्क आ रहा था क्योंकि यहाँ पे नो रिस्क है। लेकिन क्योंकि ये दूसरी रो जो है इसमें आपकी एक्सपायरेशन डेट नल है, तो हमें नहीं पता ये एक्सपायरेशन डेट 30 है या 31 है, 7/31 है, हमें नहीं पता। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि जो भी रिस्क के साथ ये 1 रो रिटर्न करेगी, हम उसका ज्वाइन कर देंगे इन दोनों रिस्क के साथ। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 2 रिस्क हियर फॉर कस्टमर A। तो जब हमें कोई एक्सपायरी डेट रिस्क मिलती, आई मीन नल मिलेगी, तो हम उसको दोनों के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए 1 के लिए दोनों रो अब रिस्क आ रही हैं और B और C एज इज पहले भी रिस्क आ रही थी। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बट एनालिटिक्स में हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। सपोज हमें रिपोर्ट में एक कस्टमर या एप्लीकेशन में कस्टमर दिखाना है, तो हमें वो सारे कस्टमर दिखाने हैं जो लेट्स से बिकॉज ऑफ सम कंडीशन दे आर एट रिस्क, तो हमें रिस्क कंडीशन लगाना है। बट लेट्स से कि उसकी एक्सपायरेशन डेट अगर नल है जो कंडीशन में, तो फिर हम उसको कैसे हैंडल करें। सो उसको बोलते हैं कि हम ये ज्वाइन जो लगा रहे हैं वो कंडीशंस जो है वो कंडीशनल है, लाइक वो सिंपल ये नहीं है कि A डॉट एक्सपायरी डेट इक्वल टू B डॉट एक्सपायरी डेट, हम उसमें केसेस का यूज करते हैं और हैविली यूज करते हैं। सो दिस इज वी कॉल्ड कंडीशनल ज्वाइन। या इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स बट इट्स सिंपल एज वेल। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like it, like the video, subscribe my channel. Thank you.